Chapter number 7, Costing Pricing Decisions. Test your knowledge questions. Question number 1. Swift Tech Limited is a leading IT security solutions and ISO 9001 certified company. The solutions are well integrated systems that simplify IT security management across the length and depth of devices and on multiple platforms. STL has recently developed an antivirus software and company expects to have life cycle of less than 1 year. It was decided that it would be appropriate to adopt a market skimming pricing policy for the launch of the product. This software is currently in the introduction stage of its life cycle and is generating significant unit profits. You are required to explain with reasons the changes, if any, to the unit selling price that could occur when the software moves from the introduction stage to growth stage of its life cycle. Also identify necessary strategies at this stage. तो बेसिकली अपने को इसमें बताना है कि क्या चेंजेस जो हो रहे हैं कंपनी में उसमें इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज वाली जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है उसके हिसाब से आंसर लिखना है और नेसेसरी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी इसके लिए. सो आंसर नंबर 1 इज following acceptance by early innovators, conventional consumers start following their lead. New competitors are likely to now enter the market, attracted by the opportunities for large scale production and profit. STL may wish to discourage competitors from entering the market by lowering the price and thereby lowering the unit profitability. The price needs to be lowered so that the product becomes attractive to different market segments, thus increasing demand to achieve the growth in sales volume. Strategies at this stage may include the following: improving quality and adding new features such as data theft protection, parental control, web protection, improved scan engine, anti spyware, anti malware, etc. Sourcing new market segments, distribution channels, changing marketing strategy to increase demand, lowering price to attract price sensitive buyers. So, these are some of the kinds of reasons for which changes is required to unit selling price so that a software can move from introduction stage to growth stage in the life cycle. And these are some of the strategies. Four strategies: improving quality and adding new features. क्वालिटी इंप्रूव करना और नए फीचर्स ऐड करना ताकि डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन हो सके, पेरेंटल कंट्रोल्स हो सकें, वेब प्रोटेक्शन रहे, इम्प्रूव्ड स्कैन इंजन रहे, एंटी स्पाईवेयर, एंटी मालवेयर एक्सेट्रा. सोर्सिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. नया मार्केट ढूंढो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपने पास रखो ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत हेल्दी रहे. चेंजिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज डिमांड. मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी चेंज करो ताकि आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ सके. एंड लोअर योर प्राइस सो दैट प्राइस सेंसिटिव बायर्स जो हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाएं आपके प्रोडक्ट पे. क्वेश्चन नंबर 2. एंजल लिमिटेड is a leading company in the footwear industry. The company has 4 factories in different locations within the state with state of the art equipments. Due to competition in the market, company is continually reviewing its product range and enhancing its existing products by developing new models to satisfy the demand of its customers. The company currently has a production facility which has a capacity of 3500 standard hours per week. Product Comfort was introduced to the market 6 months ago and is now about to enter the maturity stage of its life cycle. कंपनी की जो करंटली अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 3500 स्टैंडर्ड आवर्स पर वीक की है. सो पर वीक है तो अभी पर वीक ही लेते हैं, मंथ पे कैलकुलेट नहीं करते. प्रोडक्ट कंफर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द मार्केट 6 मंथ अगो. 6 महीने पहले प्रोडक्ट कंफर्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था एंड इज़ नाउ अबाउट टू एंटर द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. 6 महीने बाद मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है प्रोडक्ट. However, research by the marketing department indicates that demand of the product Comfort in the market is price sensitive. प्राइस सेंसिटिव है क्योंकि आपने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम किया तो डिमांड बढ़ जाएगी. द लाइकली मार्केट रिस्पॉन्स आर एज फॉलोज. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1750 पे डिमांड थी, 550 की, 1600 पे 725 की, 1525 पे 1000 की. प्राइस कम होता जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है, 1300 पे 1200 हो गई डिमांड. द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंफर्ट इज 750 रुपये. स्टैंडर्ड आवर्स यूज टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज 2 hours.
एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 3500 स्टैंडर्ड आवर्स हैं, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1750 यूनिट्स अपन एक वीक में बना सकते हैं। और बेसिकली डिमांड की अगर बात करें तो 1200 यूनिट की डिमांड है पर वीक की। तो अगर मतलब हाँ, अगर वैसे देखें सिर्फ जितना टेबल में दिया है तो उस हिसाब से तो हमारी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी बच जाएगी 550 यूनिट की, मतलब 550 यूनिट और बना सकते हैं या फिर उसको किसी और में लगा सकते हैं। प्रोडक्ट स्पोर्ट्स was introduced to the market 2 months ago using a penetration pricing policy and is now about to enter its growth stage. Each unit has a variable cost of rupees 545 and takes 2.5 standard hours to produce. तो 550 आवर्स बचे तो डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो 220 यूनिट्स इसकी बना सकते हैं 550 आवर्स में टू प्रोड्यूस। मार्केट रिसर्च हैज़ इंडिकेटेड दैट देयर इज़ अ लीनियर relationship between its selling price and the number of units demanded of the firm P equal to A minus BX। ये उसका फॉर्मूला होता है, ए मतलब इनिशियल यूनिट्स विदाउट प्रॉफिट माइनस बी एक्स एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 यूनिट 1000 रुपीज़ पर यूनिट डिमांड is expected to be 1000 units per week. For every 100 rupees increase in selling price, the weekly demand will reduce by 200, and for every 100 rupee decrease in selling price, the weekly demand will increase by 200 units. 100 रुपये बढ़ाओगे तो 200 यूनिट कम होगी, 100 रुपये कम करोगे तो 200 यूनिट बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट एथनिक तीसरा प्रोडक्ट है ये, ठीक है, इज करेंटली बीइंग डेवलप्ड एंड which is about to be launched in the market. This is a highly innovative designer product which the company believes that it will have a revolutionary impact on the market and consumer behavior. The company has decided to use a market skimming approach to pricing this product during its introduction stage. You are required to advise which of the following 5 selling prices should be charged for product comfort in order to maximize its contribution during its maturity stage. Second is calculate the number of units to be produced of product sports in order to utilize all of the spare capacity from the answer to one above about the selling price per unit of product sports during its growth stage. Compare penetration and skimming pricing strategies during the introduction stage using product ethnic to illustrate your answer. पेनिट्रेशन और स्कीमिंग प्राइसेस में क्या डिफरेंस होता है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है कि आप जैसे ही मार्केट में प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस करते हो, आप इतना लो प्राइस रखते हो कि पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हो आप, और उसके बाद जब आपके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर आ जाता है, उसके बाद जब कॉम्पिटिटर्स आने लगते हैं या नहीं भी आने लगते हैं, मतलब पहले आप लो प्राइस रख के मार्केट कैप्चर करते हो, फिर आप प्राइस बढ़ाते हो धीरे धीरे, तो उससे आपको प्रॉफिट होने लगता है। और स्किमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि क्रीमी लेयर जो होती है, स्किमिंग इज़ बेसिकली क्रीम निकाल लेना ऊपर का। तो आप जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, इट्स काइंड ऑफ अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो आप बहुत हाई प्राइजेस रखते हो स्टार्टिंग में, और जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, उनको हाई प्राइजेस चार्ज करके उनसे पूरा प्रॉफिट निकाल लेते हो, और उसके बाद जब कॉम्पिटिटर्स वही प्रोडक्ट लेके आने लगते हैं तो आप अपना प्राइस लो कर देते हो ताकि कंपटीशन ख़त्म हो जाए। बाकी एथनिक के हिसाब से इसको आंसर में लिख देंगे। सी पार्ट इज एक्सप्लेन विद रीजंस फॉर ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ एथनिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द चेंजेस दैट वुड बी एक्सपेक्टेड इन द एवरेज यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट सेलिंग प्राइस। आंसर नंबर 2, फर्स्ट पार्ट was selling price for comfort that would maximize its contribution at maturity stage. comfort का सेलिंग प्राइस निकालना है हमें मेच्योरिटी स्टेज पे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूनिट सोल्ड। तो यहाँ टेबल बना दिया, एक सेल्स का फिगर दिया हुआ था हमारे पास यूनिट पर वीक का, 550 यूनिट, 725, 1000, 1150, 1200, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 1750। जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी उतनी प्राइस कम होती जाएगी, 1600, 1525, 1450 एंड 1300 सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया ही हुआ है, सबका सेम है 750, 750, 750। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, ये आएगा 1000, 1600 माइनस 750, 850, 1525 माइनस
750, 775, 750 को मेमोरी में डाल दो, 1450 माइनस 750, 700, 1300 माइनस 750, 550, और टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट्स, तो 1000 इंटू 550, 5,50,000, 725 इंटू 850, 6,16,250, नेक्स्ट है 7,75,000, नेक्स्ट 1150 इंटू 700, 8,05,000। साथ में करते चलना आप लोग भी भाई, और स्पीड फास्ट होनी चाहिए, फास्ट का पेपर लेंदी आता है क्योंकि 6,60,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम, टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कब है? जब 8 लाख रुपए, 8,05,000 रुपये, मतलब जब हम सेल कर रहे हैं 1150 यूनिट्स, 1150 यूनिट, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 1450 रुपये। एट दैट टाइम अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था? प्रोडक्शन, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये कंफर्ट का बता दिया ऊपर। अब सेकंड प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, स्पोर्ट्स के बारे में। तो एंजल लिमिटेड हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 3,500 आवर्स पर वीक एज एक्सप्लेन्ड इन वन अबव, इट वुड मैन्युफैक्चर 1150। तो 3,500 आवर्स पर वीक थे, और ऊपर वाला जो कंफर्ट प्रोडक्ट था उसमें 2 आवर्स लगते थे एक प्रोडक्ट को बनाने में। तो अगर हम 1150 यूनिट्स बनाएंगे तो वी विल कंज्यूम 2,300 आवर्स पर वीक। तो बैलेंस आवर्स बचेंगे 2,300 माइनस 3,500, 1,200 आवर्स पर वीक। और जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है उसको लगता है 2.5 आवर पर यूनिट। सो 1,200 डिवाइड बाय 2.5, we can produce 480 units। 480 units per week we can produce। तो ये पूरा यही लिखा हुआ है, ईच यूनिट ऑफ कंफर्ट रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर टोटल यूनिट प्रोडक्शन आवर इज 2,300 आवर्स पर वीक, प्रोडक्शन कैपेसिटी रिमेनिंग इज 35 माइनस 23, 1,200 आवर्स पर वीक, and then each unit of product requires 2.5 hours of production, therefore the number of sports units that can be produced is 1,200 divided by 2.5, 480 hours per week। उसके बाद लीनियर रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड has been given to be P equal to A minus BX। Linear relationship, P equal to A minus BX, where P is the selling price per unit, P is the selling price per unit, A is the selling price when demand will be zero, A is selling price when demand is ज़ीरो। हमने बोला था ना कि आप 100 रुपये कम करोगे तो आपकी 200 यूनिट बढ़ जाएगी, तो ऐसे ही अपन 100 रुपये करके 0 पे ले आएंगे, डिमांड ज़ीरो कर देंगे, उसके बाद उस पर जो सेलिंग प्राइस रहेगा उससे कैलकुलेट करेंगे फिर। बी होता है स्लोप, स्लोप दैट इज चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एक्स इज क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल क्वांटिटी की डिमांड कितनी है। So given at a selling price of rupees 1,000 per unit, quantity demanded will be 1,000 units per week. For every 100 rupees increase or decrease in selling price, the quantity demanded will decrease or increase by 200 units per week respectively। 500 रुपी 500 रुपये इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो 200 यूनिट्स पे फ़र्क पड़ेगा, तो मतलब इंटू 2 बेसिकली, 500 इंटू 2, 1000 अपना कम हो जाएगा। तो एट दैट पॉइंट डिमांड विल बी ज़ीरो। 500 rupees increase in selling price will result in fall of 1,000 units of sales per week। The selling price at which the sales will be zero is 1,500 rupees per unit। 1,500 रुपये पर यूनिट पे डिमांड ज़ीरो रहेगी, तो ए की वैल्यू आ गई ज़ीरो। बी इज़ चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो चेंज इन प्राइस 100 से चेंज करो तो 200 क्वांटिटी चेंज होगी, तो 0.5 ये आ गया बी। Penetration pricing is most commonly associated with the marketing object of increasing market share or sales volume
rather than short-term profit maximization, thus substituting the values in the equation to find the selling price of sports when the quantity sold is 480 units. तो अपने पास क्वांटिटी डिमांडेड भी अपन ने निकाली थी 480 यूनिट्स है इसकी, तो इक्वेशन बन गई पूरी 1500, बेसिकली 100/200.5 इंटू 480, ये आया 1500 माइनस 240, 1260 रुपये। तो ये क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा कैलकुलेट हुआ स्पोर्ट्स का ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज। ऑल्टरनेटिव एक और है कि आवर्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कंफर्ट इज 1200 आवर्स टू बी यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट स्पोर्ट्स, 480 यूनिट्स क्रिएट होंगी, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस विल लीड टू 20% डिक्रीज इन डिमांड ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट स्पोर्ट्स। हेयर वी कैन प्रोड्यूस only 480 units, which amounts to 52% decrease in units, so the selling price should be increased by 26% as per given price demand function. So the selling price per unit will be 1260 for 480 units of the product sports. तो बेसिकली वही है कि यार आपका कॉमन सेंस है, कॉस्ट में कॉमन सेंस है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे निकाल लो या वैसे निकाल लो। अगर फार्मूला याद हो a माइनस बी एक्स का, a माइनस बी एक्स भी वही है कि स्लोप इज बेसिकली व्हाट, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी इनटू टू क्वांटिटी डिमांडेड, और सेलिंग प्राइस, और जहाँ पे सेलिंग प्राइस और डिमांड इज ज़ीरो, तो वो फंक्शन बनाया वैसे ही है, ऐसे निकालना ऐसे निकाल लो, वैसे निकालना वैसे निकाल लो। सो बी पार्ट में क्या पूछा था, स्किमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में डिफरेंस पूछा था एथनिक प्रोडक्ट को लेके। सो एथनिक इन द गिवन is given to be a highly innovative product that is about to be launched into the market. The product with unique features that will differentiate it from other products, leading to a revolutionary impact on market and customer behavior. There seems to be no competitors providing similar products. Skimming pricing strategy is adopted. ऐसे केस में क्या करेंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट है टू बी लॉन्च, द फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे आपको, इनोवेटिव है, कोई दूसरा प्रोडक्ट सिमिलर है नहीं, आपके प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद दूसरे प्रोडक्ट्स आएंगे सिमिलर, तो हेयर यू कैन अप्लाई सिमिलर वो स्किमिंग प्राइस स्ट्रैटेजी rather than penetration pricing strategy. So skimming price strategy is adopted to charge higher prices in the introduction stage in order to recover cost. Skimming price will be suitable for ethnic because market for the product is not yet established. Initially, high promotional expenses may have to be incurred to create customer awareness and build a market for the product. Due to its innovative features, the customers would not mind paying a premium for the unique product offering. Demand would be inelastic. मतलब प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट नहीं होगी, that that's what means about demand would be inelastic. The market demand is unknown. Initial capital outlay to produce this product may be high, resulting in high cost of production. Production and promotional cost in the initial years is likely to be high. Therefore, a higher selling price would help Angel Limited to recover the cost. Since demand is likely to be inelastic, charging a premium may not be a problem. The price can be gradually reduced once the market for the product is established. Competitors may reverse engineer and offer similar products, due to which price may have to be lowered in the long run to retain customers. तो डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। स्किमिंग प्राइसिंग है, आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो इंट्रोडक्शन स्टेज पे ताकि आपकी जो कॉस्ट लगी थी वो रिकवर हो जाए, ठीक है। एंड स्किमिंग प्राइसिंग इज सुइटेबल फॉर एथनिक प्रोडक्ट बिकॉज इसका जो मार्केट है वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और स्टार्टिंग में जब आप प्रोडक्ट लेके आओगे तब आपको हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस मतलब मार्केटिंग बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कस्टमर अवेयरनेस आपका क्रिएट होगा और आपका एक मार्केट बन पाएगा प्रोडक्ट का। और ड्यू टू इट्स इनोवेटिव फीचर, क्योंकि एथनिक एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो जो कस्टमर्स हैं वो प्रीमियम पे करने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, उसकी वजह से मतलब क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसमें। एंड द मार्केट डिमांड इज़ अननोन, और मार्केट की डिमांड आपको पता नहीं है कि आपको कितना पैसा लगाना पड़ सकता है, इनिशियल कैपिटल आउटले टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट में बी हाई। ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाए तो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़े, उसके लिए आपको ज़्यादा प्राइस तो चार्ज करना ही पड़ेगा। एंड प्रोडक्शन एंड प्रमोशनल कॉस्ट इन द इनिशियल ईयर्स इज लाइकली टू बी हाई, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रमोशनल कॉस्ट दोनों हाई रहेंगे इनिशियल ईयर्स में। देयरफॉर हायर सेलिंग प्राइस वुड हेल्प एंजल लिमिटेड टू रिकवर द कॉस्ट। सिंस डिमांड इज लाइकली टू बी इनइलास्टिक, चार्जिंग अ प्रीमियम मे नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये पॉइंट दो बार लिख दिया बट ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा है। द प्राइसिंग कैन बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, और प्राइस उसके बाद आप ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकते हो वंस आपने अपना
जो कॉस्ट था वो रिकवर कर लिया, क्योंकि जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपका प्रोडक्ट देके रिवर्स इंजीनियर करके सेम प्रोडक्ट बनाएंगे और सस्ते में बेचेंगे, और बाद में कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए आपको भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, इसलिए आप पहले प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लो, और जब उनका रिवर्स इंजीनियर करके दूसरों का प्रोडक्ट आ जाए तब लो प्राइस पे बेच दो, तो वो वैसे ही नहीं लेंगे उनका। फिर penetration pricing is adopted to charge a low price in the initial stage for penetrating the market as quickly as possible. For a new product, this low price strategy will popularize the product. Once the market is established, the price may be increased. Penetration pricing will be suitable when demand for the product is elastic, more demand when prices are low. Large scale production of the product yields economies of scale. Threat of competition requires prices to be set low. It serves as an entry barrier to prospective customers as well. Product Ethnic is an innovative product that the manufacturer believes will change the whole market once it is launched. A strategy of penetration pricing could be effective in discouraging potential new entrants to the market. However, the product is believed to be unique and as such demand is likely to be fairly inelastic. In this instance, a policy of penetration pricing could significantly reduce revenue without a corresponding increase in sales. Thus, this strategy is not suitable for ethnic. अब एथनिक में क्या हुआ कि मतलब बेसिकली पहले तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग समझाया कि इनिशियल स्टेज में आप लो प्राइस चार्ज करो ताकि आप मार्केट कैप्चर कर सको क्विकली, और लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि आपको वो मार्केटिंग कम करनी पड़ती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वैसे ही पॉपुलराइज हो जाता है क्योंकि आपका प्राइस लो है, और एक बार जब मार्केट स्टेब्लिश हो जाए आपका, उसके बाद प्राइस बढ़ा दो. दैट्स व्हाट जियो इज डूइंग राइट नाउ. डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक. इस डिमांड की क्या, इसकी जो डिमांड होती है ऐसे प्रोडक्ट्स की वो इलास्टिक होती है, मतलब आपने प्राइस कम किया तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ा दिया आपने तो डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है. मोर डिमांड व्हेन प्राइजेज आर लो ऑब्वियसली. लार्ज स्केल प्रोडक्शन से क्या होता है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल पड़ता है, स्केल का बेनिफिट मिलता है, और पर यूनिट कॉस्ट जो होती है आपकी प्रोडक्ट की वो लो हो जाती है. थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिशन रिक्वायर्स प्राइस टू बी सेट लो. कंपटीशन के थ्रेट की वजह से आपको प्राइस लो रखना पड़ता है. आप प्राइस लो रखोगे तो वैसे ही जो लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे वो आएंगे ही नहीं प्रोडक्ट मतलब मार्केट में, और जो लोग ऑलरेडी हैं और जो उस कॉस्ट पे सस्टेन नहीं कर सकते वो भी हट जाएंगे. तो दिस इज़ व्हाट डिस्करेजिंग पोटेंशियल न्यू एंट्रेंसेस एंड डिमांड इज़ लाइकली टू बी फेयरली इन इलास्टिक. तो जो अपना प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, और इंस्टेंट पॉलिसी में इसमें यह है कि आप नहीं लगा सकते पेनिट्रेशन प्राइसिंग, क्योंकि आपको कॉस्ट लो रखनी पड़ेगी, तो दिस इज़ नॉट सुइटेबल फॉर एथनिक. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ इट इज impact on unit selling price and average cost. Impact on unit selling price and average cost of production per unit at each stage of ethnic product life cycle. यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो होता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ग्रोथ स्टेज होता है, मेच्योरिटी स्टेज होता है, देन डिक्लाइन स्टेज होता है. तो एथनिक के हिसाब से पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताना है. यूनिट सेलिंग प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्टेज. एज एक्सप्लेन्ड इन बी अबव, द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ production and initial promotional expenses, the unit cost of production will be high. Using skimming price policy, the unit selling price will also be high. प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहेगी इसलिए सेलिंग प्राइस भी आपको हाई रखनी पड़ेगी. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू इन इंट्रोडक्शन स्टेज यूजिंग स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी. एंड एट ग्रोथ स्टेज इज द सेकेंड फेज ऑफ लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज डिमांड. डिमांड बढ़ेगी आपकी क्योंकि प्रोडक्ट अवेयर हो, लोग अवेयर होंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में. देयरफॉर स्केल ऑफ प्रोडक्शन likely to increase. The new market segment would attract competitors who are like to reverse engineer and offer similar products in the market. Promotional activities and marketing activities need to continue to maintain and gain market share. प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी, ताकि आपका जो मार्केट शेयर है वो पहली बात तो मेंटेन रहे. सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना मार्केट शेयर. उसके बाद मेंटेन रहे और साथ साथ आप गेन भी करते रहो मार्केट शेयर. Both of these things are very important. Accordingly, the unit selling price would reduce from the introduction stage on account of the following reasons. इंट्रोडक्शन स्टेज से जब आप ग्रोथ स्टेज पे जाओगे तब भी आपका प्राइस जो है
थोड़ा थोड़ा reduce होता रहेगा. The unit selling price would reduce from the introduction stage. Following reasons की वजह से, क्या reasons हो सकते हैं price reduce करने के? Competitors offering similar product would take away the uniqueness feature of the ethnic. Again, to gain market share, the unit selling price may have to be lowered to make it attractive to a large segment of customers. The unit cost of production is also likely to reduce due to following reasons. जो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होगा क्योंकि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन है वुड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड मटेरियल प्रोक्योरमेंट फ्रॉम सप्लायर्स. बल्क परचेजिंग डिस्काउंट्स कैन बी नेगोशिएटेड विद देम टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Learning curve and experience would enable the labor force to become more efficient. This leads to higher production with the same level of resources, leading to cost saving. Larger production batches due to increase in scale of operations will reduce the unit variable overhead cost. Economies of scale would result due to fixed overhead cost being spread over large number of units. तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो आपका सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस हो रहा है. सेलिंग प्राइस क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने आपका प्रोडक्ट कॉपी कर लिया और आपका जो यूनिक फीचर था अब वो एज यूनिक नहीं रहा मार्केट में. अगेन टू गेन मार्केट शेयर द सेलिंग प्राइस को आपको लोअर रखना पड़ेगा टू अट्रैक्ट अ लार्जर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स. एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा तो आप बल्क में सामान खरीदोगे और आप बल्क डिस्काउंट ले सकते हो सप्लायर से. और लर्निंग कर्व लग जाएगा इस पर. लर्निंग कर्व मतलब आप इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज पे आए हो. बेसिकली आप सीख रहे हो. सीखते 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 क्या होता है कि आपका टाइमिंग कम हो जाता है. स्टैंडर्ड टाइम जो होता है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वो कम लगने लगता है. प्रोडक्शन जो वेस्टेजेस होते हैं वो हट जाते हैं आपकी प्रोसेस से. तो उससे आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो और कॉस्ट सेविंग होती है उससे. लार्जर प्रोडक्शन बैचेस ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स. सेल्स आपकी बढ़ रही है तो आप प्रोडक्शन का बैच ज़्यादा रखोगे. उससे आपका जो यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट. क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो बहुत सारी यूनिट्स में बढ़ जाएगी तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी बहुत लो हो जाएगी. Then is maturity stage, the third phase of product life cycle that is characterized by an established market for ethnic. After rapid growth in sale volume in the previous stages, growth of sales for the product will saturate. Competition would be high due to large number of rivals in the market. This may lead to decreasing market share. It is likely that the price of the product will be lowered further at the maturity stage in a bid to preserve sales volume. The company may attempt to preserve sales volumes by employing an extension strategy rather than reducing the selling price. For example, they may introduce product add ons to the market that are compatible with ethnic. Unit production cost will remain constant. Direct material cost will remain constant. If procurement is lower than the growth phase, it might even lead to slightly higher prices since the supplier may not extend bulk discounts. The benefits of efficient production due to the effect of learning and experience may also have waned. Therefore, unit labor cost is also likely to remain constant. Since scale of production is no longer increasing, the unit variable overhead costs are likely to remain constant. अब मेच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि आपका मार्केट स्टेब्लिश हो चुका है. रैपिड ग्रोथ थी आपकी सेल्स वॉल्यूम में प्रीवियस स्टेज में वो ग्रोथ स्टेज में. ग्रोथ ऑफ सेल्स फॉर प्रोडक्ट विल सैचुरेट. अब मेच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि जो जिस ग्रोथ से सेल बढ़ रही थी सेल बढ़ेगी आपकी बट जो ग्रोथ थी वो कम हो जाएगी. कंपटीशन वुड बी हाई ड्यू टू क्योंकि लार्ज नंबर बहुत सारे राइवल्स आ जाएंगे आपके मार्केट में. उससे आपका मार्केट शेयर भी कम हो जाएगा. मार्केट शेयर भी कम हो जाएगा क्योंकि मार्केट बढ़ेगा और उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स रहेंगे तो मार्केट शेयर डेफिनेटली लो होगा. आपकी सेल भले ही बढ़ती रहे बट मार्केट शेयर कम हो जाएगा. अब मेच्योरिटी स्टेज पे क्या करना है कि जो हमारी सेल्स थी हमें उसे प्रिजर्व करना है, मेंटेन करना है. द कंपनी में अटेम्प्ट टू प्रिजर्व सेल्स वॉल्यूम. क्या कर सकते हो आप? एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी करोगे रादर देन रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस. एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी मतलब आप उसी प्रोडक्ट के अलग अलग चीज़ें निकालोगे, नए नए प्रोडक्ट्स निकालोगे. फॉर एग्जाम्पल दे में इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट एड ऑन्स टू द मार्केट दैट आर कंपैटिबल विद एथनिक. जैसे आईफोन आया तो आईफोन के साथ स्मार्ट वॉच निकाल दी. स्मार्ट वॉच उसके बाद फिर वो बैंड्स निकाल दिए, छोटे छोटे एयरपॉड्स निकाल दिए. पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया आपने. दिस इज वॉट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी इज. सो यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. जो आपकी यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मेच्योरिटी स्टेज पे आके कांस्टेंट हो जाएगी. उसके बाद उस पॉइंट से नीचे जा ही नहीं सकती कॉस्ट क्योंकि
आपको हर चीज़ का बेनिफिट मिल चुका है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, आपका जो ओवरहेड्स था वो स्प्रेड हो गया, लर्निंग कर्व मिल गया। लर्निंग कर्व भी एक पॉइंट के बाद जाके कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद तो नहीं गिरेगा ना। मतलब जितना एक स्टैंडर्ड टाइम लगता है एक इंसान को उस काम करने में, उस काम को करने में, तो उतना तो लगेगा ही ना, उससे कम तो लग ही नहीं सकता। तो वही हो जाएगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, प्रोक्योरमेंट इज़ लोअर, प्रोक्योरमेंट कम हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ फेज कम हो गई है आपकी, हायर प्राइजेस, सप्लायर्स जो हैं वो फिर डिस्काउंट देना कम बंद कर देंगे। द बेनिफिट्स ऑफ efficient production due to effect of learning and experience may have been waned. Therefore, unit labor cost is likely to remain constant since scale of production is no longer increasing, और प्रोडक्शन आपका बढ़ नहीं रहा है तो लोअर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, सब कांस्टेंट हो जाएगा। अब कांस्टेंट होने के बाद क्या होता है कि बढ़ेगा तो नहीं, डिक्लाइन ही होता है। सो डिक्लाइन स्टेज आ जाती है लास्ट में। दिस लास्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सैचुरेटेड मार्केट, declining sales, change in customer taste, etc. Profitability may slowly start decreasing with fall in sales. At the decline stage, product ethnic is likely to have been surpassed by more advanced products in the market and consequently will become obsolete. The company will not want to incur inventory holding cost for an obsolete product and is likely to sell ethnic at marginal cost or perhaps lower. Sales volume at the decline stage are likely to be low at the product as the product is surpassed by new exciting products that have been introduced to the market. Furthermore, the workforce may be less interested in manufacturing a declining product and may be looking to learn new skills. For both of these reasons, unit production costs are likely to increase at the declining stage. ठीक है। Next is question number 3. Bathway India Limited (BIL) is an ISO 9001-2008, a premier multidiscipline company. BIL manufactures a diverse range of products with pressure vessels, wagons, steel casting, etc. To manufacture wagons, BIL undertakes structural fabrication jobs and manufacturing retrofitting of EOT crane. It is presently the flagship company of the Bathway Group, comprising of renowned companies such as Krishna Agriculture, Xiang Phosphate, etc. The group was launched with the idea of one virtual company with diversified businesses and is based on four fundamental principles: collaboration, sustainability, inclusiveness, and being global. Bathway India Limited has two divisions, namely Bogie Division and Wagon Division. For manufacturing of wagon, Bogie division manufactures bogies and wagon division manufactures various type of wagons like freight wagon, tank wagon, special wagon, etc. To manufacture a wagon, wagon division needs four bogies. Bogie division is the only manufacturer of the bogies and supplies both wagon division and outside customers. Details of BD and WD for the coming financial year 2018-19 are as follows. फिक्स्ड कॉस्ट बताई है BD की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताई है और कैपेसिटी पर मंथ यूनिट्स में इसकी 320 है, इसकी 12 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसकी 2,20,000 है, उसकी 4,80,000 है। 4,80,000 इज एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 9,20,20,000 और वेकेंट डिवीजन की दी है 16,45,36,000। So, market research has indicated that the demands in the market for Bathway India Limited's products are different. Quotations are as follows. For bogies, quotation price of 3,20,000 rupees, no tender will be awarded, but demand will increase by 30 bogies with every 10,000 rupees reduction in the unit quotation price below 3,20,000। 3,20,000 से जितनी बार आप 10,000 रुपये कम करोगे उतनी आपकी 30 बोगी की डिमांड बढ़ेगी। For wagons, quotation price of 17,10,000, no tender will be awarded, but the demand for ये वो A माइनस बी एक्स लेते हैं ना, तो इसमें A का वैल्यू इज 17,10,000 क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं है, हेयर डिमांड इज ज़ीरो। और उसके बाद रिडक्शन करते हो आप तो दैट इज़ बी निकालेंगे, इतना भी स्लोप निकल जाएगा इससे। 50,000 का आप प्राइस रिड्यूस कर रहे हो तो आपकी कितनी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है इनटू आपकी जो डिमांड है वो निकाल लेंगे, तो हमारा प्राइस सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल आएगा। Reduction in the unit quotation price below 17,10,000. Further, BD is the only manufacturer of bogies, but due to increased demand, competitors are entering the market. The division is reviewing its pricing policy and carrying out some market research. After market research,
After the market research, the division BD has decided to introduce new type of E-class bogies in the market and to obtain the patent right for such unique bogies. High growth in the future characterizes this class. You are required to calculate the unit quotation price of the wagon that will maximize Bathway India Limited's profit for the financial year 2018-19, and then calculate the unit quotation price of the wagon that is likely to emerge if the divisional managers of BD and WD both set quotation prices calculated to maximize the divisional profits from sales to outside customers, and the transfer price is set at market selling quotation price. Note P equal to A minus BQ, then MR marginal revenue is equal to A minus 2 into BQ. Recommend appropriate pricing strategy while introducing the E class bogies. E class bogies कुछ नया लेके आवे. So answer to third question is first we have to calculate the unit quotation price of the wagon that will maximize Bathway India Limited's profit for the financial year 2018-19. So question number 3 part 1. Assume quotation price is P and quantity is Q. So marginal cost of wagon, marginal cost कितना दिया हुआ है? मार्जिनल कॉस्ट दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा. मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट होगी 2,20,000 रुपये हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और 4,80,000 वेरिएबल कॉस्ट है वेगन डिवीजन की. तो 4,80,000 और एक वेगन में 4 बोगी आती है, यही बोला था मैंने. वेगन डिवीजन नीड 4 बोगीज, तो 2,20,000 इंटू 4 8,80,000 का कॉस्ट और एक वेगन में 4,80,000 का. सो टोटल कॉस्ट जो होगा मार्जिनल कॉस्ट वेगन का वो हो जाएगा 13,60,000 रुपये. 13,60,000 कैसे निकाला? 2,20,000 एक बोगी का कॉस्ट और एक वेगन में 4 बोगी चाहिए रहती हैं प्लस एक वेगन का कॉस्ट है 4,80,000 वेरिएबल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया हमारा 13,60,000. सो डिमांड फंक्शन फॉर वेगन इज प्राइस कैलकुलेट करेंगे वेगन का. कैसे निकलेगा? 17,10,000 पे वेगन का डिमांड ज़ीरो था तो ए का वैल्यू 17,10,000 हो जाएगा माइनस प्राइस चेंज हो रहा है 50,000 से, क्वांटिटी चेंज हो रहा है 2 यूनिट से इनटू क्वांटिटी. सो ये पी आ गया. अब रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस. प्राइस क्या है? 17,10,000 माइनस 25,000 इंटू क्यू. ये दो इक्वेशंस बन गई. इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो 17,10,000 क्यू माइनस 25,000 क्यू स्क्वायर. देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 17,10,000 माइनस 50,000 क्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज, मार्जिन मतलब चेंज इन रेवेन्यू, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे आप जा रहे हो तो क्या निकलेगा? एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 13,60,000. When MR equal to MC, profit is maximum.
तो मार्जिनल रेवेन्यू निकाला इन लोगों ने, प्राइस दिया हुआ है हमारे पास, प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 17,10,000 का माइनस 50,000 क्यू। ये वाला इक्वेशन कैसे आया है मार्जिनल रेवेन्यू वाला? कुछ है इसका जो कोई कुछ बता सके भाई? अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। जो टोटल रेवेन्यू है डिवाइड बाय क्वांटिटी इज मार्जिनल रेवेन्यू। सो आर जो हमारा बना था वो आया था 17,10,000 क्यू माइनस 25,000 क्यू स्क्वायर। सो क्यू अगर कॉमन निकालें तो 17,10,000 माइनस 25,000 क्यू बचना चाहिए ना, इन्हें 50,000 क्यू क्यों कर दिया? उसके बाद अगर एम आर इक्वल टू एम सी करते हैं, देख लो भाई, अब किसी को समझ में आएगा तो कर लेना, नहीं तो जैसा बुक में दिया है करते जाओ। माइनस 50,000 क्यू इक्वल टू 13,60,000। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकल जाएगा, क्यू का वैल्यू आएगा 17,10,000 माइनस 13,60,000 डिवाइड बाय 50,000। सो क्यू इज 7 units. By putting the value of q in demand function of value p, we can calculate the value of p. So this is 25,000 into 7 minus 17,10,000. Price is 15,35,000 rupees per wagon. At 15,35,000 unit quotation price of wagon, the Bathway Limited's profit will be maximum. Then in second part, they have asked to calculate the unit quotation price of the wagon that is likely to emerge if the divisional managers of BD and WD both set quotation prices calculated to maximize divisional profit from sales to outside customers, and the transfer price is set at market selling price quotation. So at BD, the divisional managers would ensure that divisional marginal revenue should be equal to divisional marginal cost so that profit can be maximum. मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? एम आर इक्वल टू एम सी। अब यहाँ पे सिर्फ डिवीजन के बारे में बात करनी है तो डिवीजन का एम आर और डिवीजन का एम सी निकालेंगे। सो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बोगी इज इक्वल टू मस्ट बोगी। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा बोगी का? 3,20,000 पे डिमांड 0 है माइनस 2 इंटू एम आर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था ना ऊपर, क्वेश्चन में दिया हुआ था, एम आर इक्वल टू ए माइनस 2 बी क्यू। याद कर लेंगे इसको, एम आर इक्वल टू ए माइनस 2 इंटू बी क्यू। तो बी तो स्लोप ही होता है, तो इसका स्लोप है 10,000 रुपीज़ से कम करोगे तो 30 बोगियाँ बढ़ेंगी इंटू क्वान्टिटी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कितनी है मैन्युफैक्चरिंग की? 2,20,000 एक बोगी की वेरिएबल कॉस्ट यही है। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकल आएगा, क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 10,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 2 666 और 3,20,000 माइनस 2,20,000 डिवाइड बाय 666.6666666 इट्स 450 यूनिट्स है। 10,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 2 666.66666 150 कैसे आ रहा है? भाई 3,20,000 आएगा, 3,20,000 में से 2,20,000 माइनस किया, डिवाइड किया आपने 666.66666 से, हाँ तो 450 यूनिट्स आ रहा है, 150 थोड़ी आ रहा है। पता नहीं क्या कैलकुलेशन करते हैं लोग। 150 यूनिट्स और 450 यूनिट दोनों से सॉल्व कर लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ बोगी P इज
3,20,000 माइनस 10,000 का चेंज डिवाइड बाय 30 इंटू 150, यहाँ पे आएगा 1000 इंटू 150 डिवाइड बाय 30 माइनस 3,20,000, 2,70,000। और अगर आप 450 यूनिट से कैलकुलेट करोगे तो 10,000 इंटू 450 डिवाइड बाय 30 माइनस 3,20,000, ये आएगा 1,70,000। सेलिंग प्राइस इनने बोला 2,70,000 आएगा. So Bogie division will earn maximum profit when it will quote a price of 2,70,000 to the outside market. Since outside market quotation is transfer price as well, so transfer price to Wagon division will be 2,70,000 and it forms part of Wagon division's marginal cost. At Wagon division, divisional manager would ensure that divisional marginal revenue should be equal to division's marginal cost so that profit can be maximum. Here marginal revenue of Wagon, एक बार बोगी का निकाल लिया. अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे वेगन का. वेगन में हो जाएगा 17,50,000 माइनस 50,000 इंटू क्वान्टिटी इक्वल टू 2,70,000 बोगीज इंटू 4 प्लस 4,80,000, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वेगन. क्वांटिटी कैलकुलेटेड इज 3 यूनिट्स and price shall be 17,10,000 minus 25,000 into 3, ये आएगा 16,35,000. पी का जो इक्वेशन था वो तो पहले ही बना लिया था ऊपर. वो 50,000 डिवाइड बाई 2 इंटू क्यू, क्यू आ गया 3. The unit quotation price of Wagon that emerges as a result of market-based transfer is rupees 16,35,000. अब थर्ड पार्ट में पूछा है recommend appropriate pricing strategy while introducing E-class bogies. Whenever a new product is launched into the market, management can adopt either skimming pricing or penetration strategy. The idea behind skimming strategy is to intentionally keep a price high to recover the high research and development and marketing expenses associated with developing a new product. For price skimming to work, the product must be perceived as having unique advantages over its competing products, very difficult to copy or protected by patents. Division BD may follow skimming strategy by taking advantage of the distinctive feature of bogie E. High prices in the early stages of bogey's life cycle are expected to generate high initial cash flows. This will help the division to recover the high development cost it would incur. Further, this new bogie E is protected from competition through entry barrier. Such barrier is patent. With penetration strategy, a low price is initially charged for the product rather than high prices. The idea behind this is that the price will make the product accessible to many buyers and therefore the high sales will compensate for the low prices being charged. The penetration pricing is adopted for rapid market acceptance, maximum sales, and discouraging competition from the market. However, this strategy is not for all companies since it requires a cost structure and scale economies that remain unaffected by narrow profit margins. The circumstances which may favor for a penetration pricing policy are highly elastic demand for the product, that is, the lower the price, the higher the demand. This situation is not mentioned in the case for bogies E. If significant economies of scale could be achieved so that higher sales volume would result in reduction in cost. However, in this case, it can be ascertained where entry barriers are low. However, in this case, new competitors cannot enter the market as bogie E is protected by patent. If company desires to shorten the initial period for the product's life cycle to enter the growth and maturity stages quickly, however, there is no evidence that division BD wish to do this. Overall, due to uniqueness, heavy R&D cost and barrier to entry for competitor, a market skimming pricing strategy is appeared to be the more appropriate pricing strategy for bogie E. Question number 3 completed. Next is question number 4. Question 4 is on pricing methods. The budgeted cost data of a product manufactured by Ayodhya Limited is furnished as follows.
बजटेड यूनिट टू बी प्रोड्यूस इज 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, वेरिएबल कॉस्ट 32 रुपये पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट 16 लाख रुपये. इट इज़ proposed to adopt cost plus pricing approach with a markup of 25% on full budgeted cost basis. However, research by marketing department indicates that demand of the product in the market is price sensitive. The likely market response are as follows. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एनुअल डिमांड दिया हुआ है, एनालाइज द अबव सिचुएशन, डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. ये भी सेम ही है वैसे ही वाला, कुछ अलग नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है. और बल्कि एनालिसिस ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच से चलना है तो पहले कॉस्ट निकाल लेंगे और उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, हो गया प्राइस. द कंपनी हैज़ अ प्लान टू प्रोड्यूस 2 लाख यूनिट्स एंड इट प्रपोज टू अडॉप्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच with a markup of 25% on full budgeted cost. To achieve this pricing policy, the company has to sell its products at the price calculated below. Quantity is 2 लाख यूनिट्स, सो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी हमारी 32 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से. 32 इंटू 2 लाख, यह है 64 लाख रुपीज़. इसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देंगे 16 लाख की, फिक्स्ड कॉस्ट 16 लैक्स, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 80 लैक्स की. टोटल बजटेड कॉस्ट, इसके बाद और कुछ कॉस्ट नहीं है. फिर प्रॉफिट ऐड कर देंगे 25% ऑन बजटेड कॉस्ट, तो 20 प्लस 16 लाख 80 लाख की कॉस्ट हो गई इंटू 25%, 20 लाख प्रॉफिट हो गया. टोटल सेल्स होगी 1 करोड़ की, और डिमांड अब निकालनी है 2 लाख की यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स हैं, तो 1 करोड़ की अगर यूनिट सेल करनी है आपको और 2 लाख यूनिट आप बेचोगे तो 50 रुपये पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए. सेलिंग प्राइस आ गई. अब जो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें 44, 48, 50, 56 और 60 की सेलिंग प्राइस दी हुई है, और 50 की सेलिंग प्राइस पे डिमांड आएगी 1,40,000 की. 1,40,000 की डिमांड आएगी, बट हमें सेल तो 2 लाख यूनिट्स करनी है, तभी हमारे पास प्रॉफिट आ पाएगा. However, its selling price, the company can sell 1,40,000 units only, which is 60,000 units less than the budgeted production units. After analyzing the price demand pattern in the market, which is price sensitive, it is perceived that to sell all the budgeted units of 2 lakh market price need to be further lowered. आपको अगर 2 लाख यूनिट बेचनी है तो आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा. बेसिकली अगर आप 44 पे भी जाते हो तो भी डिमांड 1,68 ही आएगी, तो भी अब और प्राइस कम करनी पड़ेगी 44 से भी. मार्केट नीड टू बी फर्दर लोअर्ड विच माइट बी लोअर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी आपकी कॉस्ट लो हो सकती है. दिस एक्शन डज नॉट सीम टू बी इन फेवर ऑफ द फर्म्स इंटरेस्ट. और एक बार ये प्रॉफिट एट डिफरेंट डिमांड प्राइसेस निकाल के बता देंगे कि प्रॉफिट कितना होगा एक्चुअल में अगर 1,28,000 यूनिट भी बेचते हैं तो भी. तो 44 की यूनिट थी, सब पे चेंज हो जाएगा. 1,68,000 पे निकलेगा, 1,52,000, 1,40,000, 1,28,000, 1,08,000. तो अगर पहला पकड़ते हैं 44 रुपीज़, तो 44 रुपीज़ में हमारी क्वांटिटी कितनी जाएगी 1,68,000, और इस पे 48 पे जाएगी 1,52,000, 50 पे जाएगी 1,40,000, 56 पे जाएगी 1,28,000, 60 पे जाएगी 1,08,000. सेल्स आएगी टोटल 73,92,000, वेरिएबल कॉस्ट 5370, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज अगर देखें तो 25.84% पे आएगा. अमाउंट में अगर टोटल देखें तो भी अमाउंट में भी फोर्थ वाले पे ही आ रहा है 14,72,000 का, बट परसेंटेज वाइज बजटेड में ज़्यादा आ रहा है 1,06,000 में, जो 60 रुपये पर यूनिट आ रही है, उसमें 1,08,000 की यूनिट है. परसेंटेज वाइज प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 28% प्रॉफिट है 60 रुपीज़ सेलिंग प्राइस पे. बट 60 रुपीज़ अपने को रखना ही नहीं, अपने को 50 पे भी मेंटेन, मतलब हमने 50 पे था, बट 50 से ऊपर अगर 56 पे जाते हैं तो 56 पे टोटल प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, और परसेंटेज वाइज प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहेगा. सो डिटर्मिनेशन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टेकिंग द अबव कैलकुलेशन एंड एनालिसिस इनटू अकाउंट. द कंपनी शुड प्रोड्यूस एंड सेल 1,28,000
units at rupees 56. At this price, company will not only be able to achieve its desired markup of 25. अच्छा हाँ, क्योंकि कंपनी का मार्कअप भी 25% का था ना, तो 1,28,000 यूनिट्स पे 25% आप कमा रहे हो ऑन द टोटल कॉस्ट, बट कैन अर्न मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन एज कम्पेयर टू other even higher selling price. If company wants to uphold its proposed pricing approach with the budgeted quantity, it should try to reduce its variable cost per unit, for example, by asking its suppliers to provide a quantity discount on the materials purchased. With reduction in variable cost per unit, the selling price per unit determined as a percentage of full cost will also reduce and suitably create demand for 2 lakh units as budgeted. अगर आपके सप्लायर्स प्राइस कम कर दें थोड़ा, तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, कॉस्टिंग कम हो जाएगी तो आप अपना सेलिंग प्राइस और कम कर सकते हो, तो उससे आपकी जो डिमांड एक्चुअल थी 2 लाख यूनिट्स की, आप वो भी मीट कर सकते हो। ठीक है, डन ये वाला चैप्टर भी।